ओके, सोनू कहाँ रहता है? Where does Sonu live? Where Sonu is? Sonu live? Where does Sonu live? Where does Sonu does live? अब बताओ, वेयर सोनू लिव्स होगा कि वेयर डज सोनू लिव होगा? Where does Sonu live? Sonu lives होगा सर, जब पहले उसके कुछ आएगा कि डू यू नो वेयर सोनू लिव्स? मुझे पता है सोनू कहाँ रहता है। I know where Where Sonu lives. Sonu lives. अब लिव या लिव्स? lives. क्या तुम्हें पता है मेरे पास क्या है? Do you know what I You know have? what I have. ठीक है। Yes, I have. Yes, what I have. मेरे पास क्या है? What I have. What do I have? What do I have? What क्या है? What do I have? What do I have? तुम्हारे पास क्या है? What do you What have? do you have? What do you have? मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है। I know. I know What you have. What you have. Yes, I know what you have. तुम्हारा नाम क्या है? What What's is your your name? name? What's your name? What's your पर कोई name? जानता। मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। I know what I know what your is- name what his your name name is. is. What your name is. What your name is. I know what your name is. Is. Yes. तुम्हारे राइट साइड में कौन है? Who Who is your is right? in your right side? Who is in your right? No, off your right. Who is in your right? At your eyes. At your eyes. At your right. Who is to your right? To your right. Who is at your right side? On your right side. At your right side. At your right side. On your right पोजीशन की side. वर्ड लगा दिया आप लोगों ने। On आएगा। वो on नहीं है। Who is next to it? गाइस, राइट और लेफ्ट के लिए Who is क्रैप on your right But side. right. We have to indicate the side also. Who is right to you? अब हमारी बारी। राइट और लेफ्ट के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। अच्छा। Correct. तो हु इज ऑन योर राइट? Add तो उसके लिए जैसे घर के लिए, जो प्लेस के लिए, ये सब इस चीजों में यूज होता है। तो मुझे था। Is on. Who is on your right side? मुझे बताओ कल तुम कहाँ थे? Tell me where were you yesterday? Where yesterday? Where were you yesterday? Yesterday. Tell Where me was you yesterday? where. ऑप्शंस हैं वेयर वर यू, वेयर यू Were you? Where were you? फिर से सुनिए, मुझे बताओ तुम कल कहाँ थे? Tell me Where where you were? you Where were. you were? बहुत ज्यादा। Tell me where you were. One by Tell one. me where you You were were yesterday. Yes, sir. Tell me where you were yesterday. Yesterday, yeah. Where you were yesterday? Yes. तुम कहाँ थे? Where were you? Where you were yesterday? Why were you yesterday? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you Where are you going? going? Where are you going? मुझे मत बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। Don't Don't tell Tell me. me Don't where tell me you where are I'm going. Where Where you are you are going? डोंट टेल मी के बाद वेयर, वहाँ तक तो Don't बर्दाश्त tell कर me लो। where you Where are you going. Where you are going. You are going. देख You are लो, going to, sir, na? वेयर आर यू कि वेयर यू आर? Where you Where you are. are? Where you are? You are Where going. you are. वेयर यू आर। Hmm. तो सर सही नहीं है, वेयर यू आर गोइंग, डोंट टेल मी। सही है, सही है। टेल मी, डोंट टेल मी वेयर यू आर गोइंग। हाँ, ये WH के बाद नाउन होता है। तुम्हारी जिप खुली हुई है। योर जिप इज ओपन। Open. Your zip is open. ओपन। Opened. पर कुछ और वर्ड होता है ओपन की जगह। Unzipped.
No, हाँ जिप्ड, अनजिप करो, वो तो अनजिप करो जिप्ड करो होता है। खुली के लिए क्या होगा? योर जिपर इज ओपन ही होगा और नहीं क्या होगा? ओपन तो नहीं होता ना सर, ओपन ही होता है। ओपन नहीं होता है। ओपन। Your jeep is open. देख लीजिए। योर जिपर इज योर जिप इज ओपन, योर जिपर इज ओपन। अनजिप आएगा यहाँ पर, अनजिप नहीं आएगा। नहीं, अभी तो ये वाला ना कि खुली हुई Unzip है, तो वो बताना है हमको, वो बताना है। अनजिप तो योर बाद जिप में। इज ओपन करेक्ट है मुझे लग रहा है। ओपन तो ठीक, पता नहीं, दोनों। जैसे वैसे आप लोग कैसे बोलते हो घर में अगर किसी को ऐसे देख लिया तो? ऐसे ही बोला जाएगा, क्लोज योर जिप और क्या? यस सर, यही बोलते हैं, योर जीप इज ओपन। ठीक है फिर। ओके। अच्छा, ओपन होगा कि ओपनड होगा? Open. ओपन एडी लगेगा। प्रेजेंट सर मैंने ओपन बोला। ओपन है ही नहीं, Open खूब adjective. ओपन नहीं होगा क्योंकि इज लगाया तो फिर ओपन होगा। Is open. Open तो adjective है ना? जिप और जिप ओपन है तब इज नहीं लगाएंगे हम। नहीं नहीं, ओपनड लगेगा। इज Opened जिप तो इज होगा भी नहीं, ओपनड, जैसे वो होता है Open ना नहीं, इस ये सिटिंग। दिव्या जी open ही एक adjective है ना? OP है, open ही होगा। Jeep is open. ओपन आएगा, ओपन तो होगा ही नहीं। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये बार थर्ड फॉर्म नहीं होगा, ये तो जस्ट एडजेक्टिव, ओपन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना। जैसे It शॉप is इज open. क्लोज्ड और शॉप इज ओपन। ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। Open, क्लोज्ड का closed. क्लोज्ड होगा, ओपन का ओपन ही होगा। ओपन तो खुद एडजेक्टिव है ना। ओके। Am I right, sir? यस सर, राइट। Yes sir, I saw this word one of the video of your video sir. This you describe sir. क्या ओपन का Right. ओपन ही You- रहेगा you और क्लोज decide का the- क्लोज्ड होता है। हाँ, And closed का sir is closed। already discussed about this point The earlier. video I found it. हाँ, shop is हाँ, open. शॉप इज ओपन He yes. already. एंड शॉप इज क्लोज्ड। अच्छा, एक क्लोज में एडी लगेगा, ओपन में नहीं He लगेगा। already discussed this thing. इंग्लिश वो मूवी तुम्हारी जिप खुली हुई थी तब ओपन हो जाएगा। नहीं, नहीं वॉज ओपन होगा तो वॉज Your ओपन। तभी ओपन यस्टरडे। नहीं Was open वॉज ओपन हो जाएगा ना, खुली हुई। was open है। मुझे बताइए, खुली हुई थी। एक इंग्लिश मूवी में किसी का ऐसे ही कुछ जिप खुला था, उसने एक सेंटेंस बोला। अब ये यास्मीन जी ही पता कर सकती है और कोई नहीं। सेंटेंस लिख लीजिए। उसने कहा था, योर फ्लाई इज डाउन। अच्छा, फ्लाई, ये तो कुछ इडियम्स टाइप हो गया। FLY, फ्लाई। योर फ्लाई इज डाउन। डाउन का मतलब समझ के खुली हुई है, नीचे है। खुला है। तो फ्लाई मतलब वो जो जिपर में जो चेन होता है, उस चेन, वो जो चेन निकला रहता है, उसी को शायद फ्लाई बोला होगा। वो चेन नीचे रहा होगा। योर फ्लाई इज डाउन। तो अब ये है कि तो सर ये सिर्फ चेन खुली हो तभी यूज होता है या कहीं और भी? नहीं, सिर्फ पैंट वाला चेन जो वो नीचे होता है। तो बैक का चेन, बैक वगैरह का चेन? नहीं, उसका तो अनजिप्ड या जिप इज ओपन, जिपर इज ओपन, ये सब चलेगा। ओके ओके। खास फ्लाई कर जैसे कोई लड़का बात कर रहा था, लड़की सामने थी, लड़की की नज़र पड़ी, अरे इसका तो खुला हुआ है जिपर, तो उसने बोला, ए योर फ्लाई इज डाउन। तो अब ये क्या सिंगापुर में इस तरह की भाषा बोली जाती है कि नहीं, मुझे खासकर जानना होता है। इंग्लिश मूवीज़ में जो यूज़ होते हैं, तो क्या वो अलग से लिखते हैं कि सचमुच उनके गांव घर में ऐसा चलता है? तो अगर मतलब क्या पता करना कि जैसे ये पता करना कि योर फ्लाई इज ओपन, ओपन नहीं, डाउन, योर फ्लाई इज Down. डाउन। डाउन और अप, इज नहीं डाउन। तो अप। हाँ, तो क्या ऐसा सेंटेंस सिंगापुर में किसी ने बोला, सुना? जैसे अगर हमारे इंडिया में कोई आके बोले कि
मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो हमने तो सुना है ना, यूज़ होता है ना। ये फ्रेज है ना, तो बोला तो जरूर जाता होगा फिर। तो वैसे ही क्या सिंगापुर तक ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मुझे जानना है। सिंगापुर बहुत एडवांस है। हाँ, अगर सिंगापुर में पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो फिर किसी अमेरिकन से पूछना पड़ेगा कि फ्लाइज डाउन, आखिर उस मूवी में ऐसा क्यों बोला योर फ्लाइज डाउन। फिर उसने नीचे देखा, शर्मा गया। ये था। अब जैसे घंटी बजी, अब घंटी बजने को हम तो कुछ रिंग विंग कुछ भी बोले, बट इसके लिए भी आजकल बज चल रहा है, बज। BUZZ हाँ, बजर से बना है बज। बजर से बना है बज। तो उसकी वाइफ को घंटी कहते हैं बजी ना, तो बस से कैसे बोलेंगे सर? घंटी बजी, somebody बस, somebody buzzed the doorbell. बस Your doorbell is buzzing. उससे अच्छा तो वो लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो कहेंगे योर डोरबेल इज बजिंग भाई, बजिंग, बज न रहा है। सर जो मधुमक्खी की वाइफ होती है उसको भी बज बोलते हैं। मधुमक्खियां जो बीज भिनभिनाती है, हाँ, वो भी उसकी बजिंग। वाइफ तो साउंड को बज बोलते हैं। जी जी। तो ये सब आजकल, जैसे हम किसी लड़की को देख के कहते हो यू आर सो हॉट, तो हॉट मतलब तो गर्म होता है, सुंदर थोड़ी होता है। तो आजकल ये सब स्लैंग चलते हैं। कोई नहीं, चलिए। और आइए, अगला सेंटेंस है कि उसके पॉकेट पर, जैसे शर्ट पहना है, उसके पॉकेट पे इंक का दाग है। इंक, जो पेन का इंक होता है। There is a mark on your pocket. There is There a is ink a mark. blot on his shirt. Ink mark on your pocket. एक इसके लिए वर्ड क्या आता है, स्टेन करके कोई वर्ड आता है ना। स्टेन आता है, हाँ, स्टेन stain आता है। आता है। मार्क, मार्क इंक स्टेन आता है। हम क्या करते हैं, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि हम इंडिया में कुछ भी ट्रांसलेट कर लेते हैं अपना, लेकिन एक ऐसी इंग्लिश होती है ना कि जो ऑलरेडी बनी बनाई चलती आ रही है, तो वहाँ पर वो है ना, मार्क बोलते हैं कि स्टेन बोलते हैं। स्टेन, मुझे Stain लगता बोलते है ना, आम स्टेन तो बहुत हो सकता है इंक स्टेन हो, ब्लड स्टेन हो, यू नो। जैसे his shirt has an स्टेनर, stain. स्टेनर होता है ना, स्टेनर वी यूज मेनी टाइम्स, स्टेनर। तो स्टेन बोलते सर ब्लॉट भी बोलते हैं ना दाग धब्बे को, हैं। क्लॉट, क्लॉट ना, CLOT, क्लॉट। BLOAT, नहीं सॉरी BLOT सर। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग, ब्लॉट। ब्लॉटिंग भी सेंस तो वही सर, स्टेनिंग एंड ब्लॉटिंग आई थिंक सेंस इज सेम, बट पर्टिकुलरली कहाँ क्या यूज होता है ये है। वो स्टेन, ब्लोटिंग तो दूसरा उसमें होता है ना। हाँ मतलब, बट सेंस तो दोनों का वही है, स्टेनर, ब्लॉटिंग। So he is blotting the door. ये तो इसी सेंस में यूज होता है कि क्या he is blotting the is door मतलब क्या हुआ? दाग Blotting the door मतलब ब्लोटिंग वो होता है कि मतलब जो पेट में फूलता है उसको ब्लोटिंग कहते हैं। अच्छा, वो तो Spread है। BLOAT होता है। एक्चुअली स्प्रेडिंग होती है, जैसे डाला और स्प्रेड हो गया वो ऑन द सरफेस, सो दैट इज ब्लॉटिंग। ब्लोटिंग अलग होती है, जो पेट फूलता है ना। नहीं नहीं, ये दाग ब्लॉट, हाँ वो तो अलग है। प्लॉट अलग है। आप लोग नहीं यूज करते थे, मुझे ध्यान है हम लोग ब्लॉटिंग पेपर यूज करते थे व्हेन आई वाज यंग स्टूडेंट, तो ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते थे हम लोग, रख देते तो वो इंक जो है वो सही अब्सॉर्ब कह कर रही है। लेता। वो ब्लॉट पेपर, हाँ सही कह रही है, आता है। उसके शूज के लेसेस खुले हुए हैं। Her shoelace is untied. पहले झटके में किस किस के दिमाग में ओपन आया था? ओपन के अनटाई क्या? अनटाई आएगा सर, Untie, sir. लेसेस बांध लो। Tie your laces. टायर
लेस। ओके, फाइन। मान लो एक बच्चे का शूज़ है, माँ ने उसके जूते धो दिए, जो कैनवास के होते हैं ना, कपड़े वाले जूते। हाँ, अब बेटा कह रहा, मम्मी मम्मी फीते लगा दो जूते में। अरेंज आएगा तो सर, Put on the अरेंज फिक्स आना चाहिए शायद, फिक्स। अरेंज भी करते हैं ना, इसमें ऐसे कई छेद में डालते हैं, तो अरेंज द लेस। help me. वो तो हेल्प मी टू पुट ऑन द मॉम प्लीज शूट ऐसे तो मुझे मेरे जूते पहनने में मदद कर दो. मॉम And फिक्स help माय me, लेस ऑन tie the lace. एक ढूंढना आप कि क्या हम लेस को फ्रेजल वर्ब बना के ऐसा बोल सकते हैं कि लेस अप योर शूज़। ये तो सुना तो है, लेस अप। ठीक है, ये सब मैं वो दे रहा हूँ जो नेटिव स्पीकर्स जो आपस में बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग, ये जो जी, शॉर्टकट अंग्रेजी होती है। तो ये कहीं पर लिख लीजिए, नहीं तो पुट द लेसेस ऑन योर शूज़, ये तो चलेगा, ये तो प्योर ग्रामर है। मैं प्योर की तो बात करी नहीं, प्योर ग्रामर में Tie my shoelace. तो ये तो जैसे सर लेस अप होगा, लेस अप योर लेस अप होगा। लेस वर्ब का बेस फॉर्म के साथ रहता है ना। जैसे हमने किसी को बोला कि हे लेस अप योर शूज़, तो लेस अप योर शूज़ का मतलब क्या हो गया कि क्या जूते के फीते बांध लो, कि फीते अंदर डालो, कि एकदम। सर बांधो लेस अप योर शूज, जूते के फीते बांधो। ठीक है, तो अगर जूते में अगर फीते डालने हैं, वो जो 10-15 होल होते हैं उसमें डालने हैं, हाँ, उसका तो सर हिंदी में भी कोई एक खास वर्ड नहीं है। तो पुट द लेसेस ऑन योर शूज़, बात खत्म है, वो ऑन ही लगाओ। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि मम्मी मेरी मतलब इसमें बांध दो, लेस बांध दो जूते में, लेस डाल दो, बांध दो. हाँ, डाल दो, लेस डाल प्लीज दो। टाई माई shoelace. पुट द लेस जैसे ऑन मुझे द वो शू। सिचुएशन जानना है कि बच्चे के हाथ में, बांधना. मम्मी मम्मी यास्मीन जी, ये फीते डालो। अभी तो डाला जा रहा है, अभी तो डाला जा रहा है, तब बांधा जाएगा। तो यहाँ डालने की डालने के लिए बात हो तो रही पुट आ है। जाएगा ना. हाँ, डालने की बात हो रही है यहाँ अच्छा, पे। ओके. बोलने की तो सर कैसे ही बोल देगा, इंसर्ट उनसर्ट कुछ भी, बट एक एग्जैक्ट ज़्यादातर या तो लोग बोलेंगे कि पुट लेसेस ऑन माई शूज़, वो ऑन बोलेंगे, वो इन या इनटू नहीं बोलेंगे। ऑन करने का मतलब क्या होता है कि उसके जूते पर वो लेसेस आ जाएंगे, तो पुट द लेसेस ऑन माई शूज़। हाँ, अब उसकी माँ बोलेगी नहीं पहले वाले होल में इंसर्ट कर, तब तो पूरा बोलना पड़ेगा कि इंसर्ट दिस इनटू द फर्स्ट होल, तब तो फुल आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि मेरे शर्ट का बीच वाला बटन टूट कर गिर गया कहीं, पता ही नहीं चल रहा है। वैसे बटन आप बोलते हैं लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रोक गिर गया, ब्रोक द बटन, गिर गया है और ब्रोक द बटन ऑफ माय शर्ट। बीच वाला है ना, बिटवीन, बीच वाला टूट कर गिर गया है, गिर गया है ना. द शर्ट बटन बिटवीन मिडिल वन, माई शर्ट बटन हैज. मिडिल वन बटन ऑफ माय अच्छा, शर्ट ये इज ब्रोक डाउन। मैं जो पूछ रहा हूँ पता नहीं आपको फनी लग रहा होगा, बट ये रियल लाइफ की इंग्लिश है, रियल लाइफ में नहीं बोलते इस तरह से। जी मैं मैं सर सारे नहीं अटक मैंने जाते। तो सर वो जो वीडियो था आपने डाल भी दिया ना यूट्यूब पे, हाँ। फिर मैंने सारे लिखे वो, जी क्योंकि वो हैं जो मतलब डेली यूज के हैं. देखिए, बटन गिरने में ना अंग्रेज लोग 2 वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये भी जिम्मेदारी यास्मीन जी की। एक वो यूज़ करते हैं कम ऑफ का, और एक इस्तेमाल करते हैं पॉप ऑफ का। एक कम ऑफ, कम और उसके साथ OFF ऑफ। जैसे मान लो आपका बटन गिर गया, ओ माय बटन हैज़ कम ऑफ। कम ऑफ तो बहुत सुना है मैंने. अच्छा, कम ऑफ। और मेरी एक, शर्ट के बटन टूट कर गिर गए हाँ, हैं. एक वो लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग देखिएगा, POP पॉप ऑफ बोलते हैं। कई अंग्रेज के मुझसे सुना पॉप ऑफ, ओ योर बटन पॉप्ड ऑफ बॉडी, ऑफ के लिख दिया कुछ भी। मैंने.
एक ने ऐसी नकली आंख लगाया हुआ था किसी फिल्म में, तो उसका नकली आंख गिर गया, ओ योर फेक आई पॉप्ड ऑफ। तो यानी कि कोई किसी ने बिंदी लगाया है, उसकी बिंदी अचानक से गिर जाए, ओ योर बिंदी पॉप्ड ऑफ। तो इससे ये नहीं पता चल रहा कि एक सतह से कोई चीज़ गिर जा रही है। यस, एक ही वर्ड में हो गया सब। तो सतह से अगर गिर रही है तो यानी कि कम ऑफ या पॉप ऑफ। कम ऑफ तो चलो कम सबको पता है, कम मतलब कम ऑफ हाँ। तो याद रहेगा। सर पॉप अप जो है ना, पॉप अप मतलब ये टेक्निकल ये लैंग्वेज में आता है। पॉप अप मतलब कुछ एक चीज सामने सबका आ गया, सडनली समथिंग हैज कम। जैसे कंप्यूटर पे It's like a पॉप pop-up. होते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट आते नहीं, रहते हैं बीच में, तो बोलते सुजोय हैं सुजोय अगर अचानक से आ गया वो पॉप ऑफ नहीं, पॉप अप है, यूपी। पॉप अप, हाँ पॉप अप। वो यूपी। पॉप। यस, और मैं ऑफ बोलो, ओ डबल एफ सर। मैं ओ डबल एफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा पॉप अप। पॉप और ओ डबल एफ ऑफ है ना, पॉप मैंने पॉप अप माने सामने आ गया, पॉप ऑफ माने गिर गया, ऐसा कुछ। हाँ, तो ओ डबल एफ का मतलब वो गिर गया, वहां से जुदा हो गया। अच्छा अच्छा। और एक पॉप के साथ और है, अगर पॉप के साथ आउट लगा दो तो कहीं से फट से बाहर आ गया, कहीं चिपका हुआ था बाहर खींच के गिर गया, पॉप्ड आउट। पॉप अप। या कोई चीज़ अचानक कहीं छुपा हुआ फट से होता है ना, एकदम अचानक बाहर निकल गया, वो पॉप्ड आउट, पॉप आउट। इस तरीके से। तो ये पॉप्ड, ये ठीक है, पॉप्ड आउट। मतलब मैं तो टेंस बदल के बोल रहा था कि आ गया अच्छा। तो सेकंड फॉर्म कर रहा था, पॉप्ड आउट। जैसे बटन गिर गया तो सेकंड फॉर्म में कर दिया ना, द बटन पॉप्ड ऑफ। पॉप आउट। ऑफ करेंगे तो उस सतह से गिरेगा, आउट करेंगे तो किसी बंद में से फुट से बाहर निकल जाएगा, होता है ना अचानक से। आउट में निकल जाना, निकल कहाँ से आ जाएगा, अंदर से आएगा। कोई चीज़ बंद है, एक वो होता था ना कि किसी ने बॉक्स खोला, अचानक से एक पंच बाहर आता था, धुम, यस। आउट, तो वो पॉप्ड Popped आउट, वो हुआ आउट। पॉप आउट और पॉप्ड आउट, गिर गया तो पॉप्ड आउट। ओके, और गिर गया तो ओ डबल एफ लगाना है, पॉप के साथ ऑफ लगाना है। पॉप ऑफ, यस। मैंने कहा ना, अगर मेरा कोई ऐसे अंग्रेज दोस्त होता बाहर ना, गिरना हम्म, पॉप आउट, और टूटकर गिरा हुआ पॉप ऑफ होगा। कोई अंग्रेज होता, मैं उसको सामने लाता, अब मैं उससे सारी बातें करता कि ये आप लोग बोलते हो कि नहीं। ये हम इंडिया में क्या करते हैं, हम इंडिया में ग्रामर फॉलो करते हैं। अब आप एक कर लीजिए ना सर, मैं करवा देती हूँ आपकी मीटिंग। ठीक है, तो मैं 10-15 फिर और लिस्ट बना के रखता हूँ, A to Z। ऐसा ऐसा लिस्ट है मेरे पास कि अंग्रेज पहले सोचेगा कि अरे बाप रे ये क्या है। नहीं, मेरा वो तो डाउट मुझे क्लियर बोलते सेशन होगा हो, सर आपके साथ। मुझे तो मदर टंग है, वो तो इजीली बता देंगे। हाँ, तो हमें अब उस चीज़ को भी तो हमें तो समझाना पड़ेगा ना, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया कि हम इंडिया में कहते हैं कि अरे देखना पानी आ रहा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना, पानी आ रहा है क्या। तो क्या हम अंग्रेजी में, अंग्रेज ऐसा बोलता होगा, हे इज वाटर कमिंग। रनिंग होगा सर, वो वाला रनिंग बोलते हैं। पानी आने के लिए वाटर रनिंग चलता है ना, रन कर रहा है, वो निकल रहा है। क्या अंग्रेज लोग का भी तो सिचुएशन होता होगा ना कि पानी बड़ा अचानक, शॉर्ट कर देते हैं हर चीज को।